Hello, dear friends. Welcome to Unacademy GATE MEPIXE. This is your educator Aprup Rao, and you are watching Concepts in Minutes. And in this video, we are going to discuss the concept of stress concentration. So, beta, in this video, we are going to talk about what exactly is stress concentration, how it is developed, what is the meaning behind it, what is the application, what is the significance of stress concentration. So, बेटा जब भी आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कोई भी ऐसा टॉपिक पढ़ते होंगे तो यू माइट हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ टॉपिक्स जिसके बारे में आपको पता नहीं होता व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ दिस टॉपिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टॉपिक. So beta, that's why we sometimes we are never able to understand a particular topic because we don't understand exactly what is the use of it, what is the significance of it. So that's why we are making these videos, Concepts in Minutes, so that we can make you understand the meaning behind each and every topic, the meaning behind each and every concept. Okay. If you're watching me for the first time, let me introduce myself. My name is Aprup Rao, All India rank 320 in GATE Mechanical, MTech from IIT Kharagpur, and my specialization was design. In my final year of MTech, I was recruited by Mahindra & Mahindra, and I was placed at Mahindra Research Valley, where I worked in the field of design of cars. I was a part of a lot of projects of Mahindra, KUV, TUV, XUV. Then I decided to quit my job after 2 years and I started teaching. So I've been teaching for more than 6 years now, and I teach subjects related to design, strength of materials, machine design, engineering mechanics, and theory of machines. Now let's talk about stress concentration. So let me explain stress concentration using a very simple concept. Okay. Let's say this is a plate. मान लो ये एक plate है. And there is a hole inside this plate. Okay. And let's say I am applying an axial load on this plate. Okay. Let's say I am applying an axial load P on this plate. Okay. Now consider different planes of this plate. Okay. Consider different planes of this plate. Let's consider this plane. Okay. So if I consider this plane and if I see what are the stresses on this plane, how I am going to get the stresses, beta? Understand? The stresses are going to be uniformly distributed. जो stresses होंगे वो टॉप से बॉटम तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, जिनकी वैल्यू होगी सिग्मा इक्वल्स टू पी बाय ए. इक्वेशन देख के ही समझ में आ रहा होगा, दिस इज अ कांस्टेंट इक्वेशन, राइट? सिग्मा इक्वल्स टू पी बाय ए. सो टॉप से लेके बॉटम तक हर पॉइंट पे स्ट्रेस की वैल्यू वही है, पी बाय ए. टॉप पे भी फोर्स वही है, पी, एरिया वही है, ए. सेंटर पे भी फोर्स पी, एरिया ए. बॉटम पे भी फोर्स पी, एरिया ए. तो टॉप से बॉटम तक हर पॉइंट पे स्ट्रेस इज सिग्मा इक्वल्स टू पी बाय ए. ओके. अब आप प्लेन को थोड़ा और क्लोज लाइए, थोड़ा और क्लोज लाइए, थोड़ा और क्लोज लाइए. क्लोज लाते लाते मान लो मैं यहां पहुंच जाता हूं एट द होल. मैं होल के पास पहुंच जाता हूं. अब मैं आपको कट करके दिखाता हूं. मान लो मैं होल के पास से इस एरिया को कट कर लेता हूं. दिस इज द डायग्राम. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की इक्वेशन के हिसाब से इस एरिया पे जो स्ट्रेसेस आने चाहिए वो कुछ ऐसे आने चाहिए, है कि नहीं? दे शुड ऑल्सो बी कांस्टेंट. उनकी वैल्यू भी कांस्टेंट होनी चाहिए. सिग्मा इक्वल्स टू पी बाय जो भी एरिया होगा. ठीक है. इसको मैं ए ओ बोल देता हूं. यहां का एरिया अलग होगा, यहां का एरिया अलग होगा. ठीक है. तो बेटा अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यहां पे भी इस होल से जो एरिया पास हो रहा है यहां पे भी स्ट्रेस कांस्टेंट ही होना चाहिए. बट ऐसा होता नहीं है. ऐसा होता नहीं है. एक्चुअल में जो स्ट्रेसेस की वैल्यू होती है वो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है. होल के पास स्ट्रेसेस की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है. इसको मैं बोल देता हूं सिग्मा मैक्सिमम. और होल से दूर स्ट्रेसेस की वैल्यू कम होती है. तो स्ट्रेसेस जो हैं एक्चुअल में कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. यानी स्ट्रेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट नहीं रह जाता. स्ट्रेसेस
होल के पास इंक्रीज हो जाते हैं, ये जो फिनोमिना है, द इंक्रीज इन स्ट्रेसेस नियर दिस होल इज नोन एज स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर किसी भी एरिया में किसी तरीके की कोई भी डिसकंटिन्यूटी हो, डिसकंटिन्यूटी से हमारा क्या मतलब है बेटा, देखो एरिया कंटिन्यूअस नहीं है, यहां बीच में एक होल आ गया है, ठीक है, तो किसी भी तरीके की कोई डिसकंटिन्यूटी हो, अब ये डिसकंटिन्यूटी अलग अलग टाइप की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अनदर टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये भी एक टाइप का डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। दिस फिलेट इज अ टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ओके। अनदर एग्जाम्पल ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बोल्ट में जो थ्रेड्स बने होते हैं, ऐसे थ्रेड्स कटे होते हैं, दे आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ऐसी बहुत सारी टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है बेटा। चेंज इन मटेरियल, फॉर एग्जांपल इस पेन को देखो, इस पेन में ये बाकी का पार्ट जो है प्लास्टिक का, इसका मटेरियल अलग है, और इसका जो ये हेड है, ठीक है, जिससे मैं लिखता हूं, इसका मटेरियल अलग है। तो एक ऐसा एरिया है जहां सडनली मटेरियल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, so that is also a form of discontinuity. So any type of hole or threads or fillets, abrupt change in area, abrupt change in material, sudden change in load, कुछ भी ऐसा टाइप का अगर discontinuity आ रहा है, then near that discontinuity the stresses increase and this phenomena is known as stress concentration. अब ये स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन पिक्चर में आता क्यों है, मैं स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को कंसिडर क्यों कर रहा हूं? तो पहली बात तो बहुत ही सिंपल सी बात मैं बताता हूं कि अगर मान लो मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की इक्वेशन से इस प्लेट को डिजाइन किया, मेरे हिसाब से स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू ये है ना, मेरे हिसाब से स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो बस इतनी है, ठीक है। मान लो यहां पे स्ट्रेस आ रहा है 100 मेगापास्कल, तो मेरे हिसाब से स्ट्रेस जो है मैक्सिमम 100 है, तो मैंने प्लेट को 100 मेगापास्कल सहने के लिए डिजाइन कर दिया। लेकिन एक्चुअल में ये स्ट्रेस की वैल्यू मान लो आ रही है 300 मेगापास्कल, ठीक है, ये कितना भी हो सकता है, मान लो एक्चुअल वैल्यू आ रही है 300 मेगापास्कल। तो अब मैं क्या करूंगा, तो मेरे भाई ये प्लेट तो फेल हो जाएगी। तो इसीलिए स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को कंसिडर करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जब भी कोई डिसकंटिन्यूटी होती है तो वहां स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन के इफेक्ट को हमें कंसिडर करना पड़ता है। अब स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन के इफेक्ट को कंसिडर करने के लिए हम एक फैक्टर यूज करते हैं विच इज नोन एज थ्योरेटिकल स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर, जिसकी वैल्यू होती है KT इक्वल्स टू सिग्मा मैक्सिमम बाय सिग्मा नॉट। अब सिग्मा मैक्सिमम बाय सिग्मा नॉट में व्हाट इज सिग्मा मैक्सिमम? सिग्मा मैक्सिमम तो ये हो गया जो एक्चुअल में स्ट्रेस आ रहा है, और सिग्मा नॉट हो गया ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की इक्वेशन से आ रहा है, ठीक है। सिग्मा मैक्सिमम मतलब एक्चुअल में स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन से जो स्ट्रेस बढ़ रहा है, और सिग्मा नॉट मतलब आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की इक्वेशन से जो स्ट्रेस निकाला है, ठीक है। अब डिफरेंट केसेस में KT की वैल्यू अलग अलग होती है, मतलब इस केस में KT अलग होगा, इस केस में KT अलग होगा, इस केस में KT अलग होगा। तो हम क्या करते हैं, एक साइंटिस्ट ने अलग अलग केसेस के लिए एक्सपेरिमेंट के थ्रू KT की वैल्यू निकाली। कैसे KT की वैल्यू निकाली, एक एग्जांपल में देता हूं। जैसे मान लो इस केस में KT की वैल्यू निकालनी, तो उन्होंने क्या किया, सिग्मा नॉट जो है वो तो इक्वेशन से मिल जाएगा। तो अगर आपको KT की वैल्यू चाहिए, सिग्मा नॉट आपके पास ऑलरेडी है इक्वेशन से, आपको KT की वैल्यू चाहिए तो आपको सिग्मा मैक्स निकालना पड़ेगा। अब सिग्मा मैक्स कैसे निकालोगे आप? सिग्मा मैक्स निकालने के लिए ही परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था बेटा? दैट एक्सपेरिमेंट इज हम एक पर्टिकुलर टाइप का मटेरियल लेते हैं और उसमें कुछ रेज डालते हैं। उन रेज को डालने के बाद इसका कलर चेंज होता है।
दैट टाइप ऑफ मटेरियल, दैट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज नोन एज फोटोइलास्टिक एक्सपेरिमेंट। ओके, तो बेटा ये एक्सपेरिमेंट जो है ये यूज करते हैं स्ट्रेसेस की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू सिग्मा मैक्स निकाल लिया, सिग्मा नॉट तो उनको डायरेक्टली इक्वेशन से मिल गया, तो उनको केटी की वैल्यू मिल गई फॉर दिस पर्टिकुलर ज्योमेट्री। ओके, अब एक बार आपको इस ज्योमेट्री का केटी मिल गया तो दोबारा जब भी कहीं पे भी दुनिया में इस ज्योमेट्री का कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन होगा तो आप इस केटी की वैल्यू यूज कर सकते हो। ठीक है, सिग्मा नॉट आप निकाल लो इक्वेशन से तो आपको सिग्मा मैक्स पता चल जाएगा, केटी आपके पास ऑलरेडी है, उस साइंटिस्ट ने दे दिया। तो उस साइंटिस्ट ने क्या किया है, अलग अलग टाइप की ज्योमेट्रिकल शेप्स के लिए ऐसे चार्ट्स बनाए हैं केटी के, और वो चार्ट्स अवेलेबल होते हैं डिजाइन डेटा बुक में। उन डिजाइन डेटा बुक्स के चार्ट से हम केटी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसको हम डिजाइन में यूज कर सकते हैं। अब आप और अगर जानना चाहते हो कि ये चार्ट्स कैसे दिखते हैं, केटी को कैसे यूज करते हैं, तो बेटा आप मेरा मशीन डिजाइन का फुल कोर्स देख सकते हैं कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। तो इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता क्या है और उसको कंसीडर करना क्यों जरूरी है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर आपको और जानना है तो आप मेरे फ्री लेक्चर्स देख सकते हैं मशीन डिजाइन के, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे मशीन डिजाइन के। जस्ट ओपन दिस वन लिंक, बस एक ये लिंक ओपन कर लीजिए tinyurl.com/approve10। गो टू योर वेब ब्राउजर राइट नाउ एंड टाइप दिस लिंक, एंटर कीजिए और आपको ये सारे लिंक्स के एक्सेल शीट्स मिल जाएंगे। मैंने सारे लिंक्स जो हैं वो एक्सेल शीट्स के फॉर्म में डाल दिए हैं। देखो मशीन डिजाइन का एक्सेल शीट है, मैकेनिक्स का एक्सेल शीट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का एक्सेल शीट है, थ्योरी ऑफ मशीन्स का एक्सेल शीट है। आपको अलग अलग एक्सेल शीट्स मिलेंगे जिनमें मैंने सारे लिंक्स को काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में डाल रखा है, उनके पीडीएफ नोट्स की लिंक्स को भी ऑर्गेनाइज्ड वे में डाल रखा है। आप सब कुछ देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मेरी आगे आने वाली क्लासेस के बारे में जानना है तो बस ये टेलीग्राम चैनल फॉलो कीजिए। ये तो मेरी पुराने वीडियोस हैं, नए वीडियोस के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए, जिसमें मैं अपने आगे आने वाली क्लासेस का, लाइव क्लासेस का लिंक अपडेट करता रहता हूं, तो आपको पता चलता रहेगा कि कब मेरी कौन सी क्लास आने वाली है। ठीक है, और अगर आपको सिर्फ लेक्चर नहीं देखने, अगर आप मुझसे पूरा पूरा पढ़ना चाहते हैं, मुझसे डाउट्स पूछना चाहते हैं, मेरे साथ असाइनमेंट्स करना चाहते हैं, तो बेटा आप अनअकैडमी प्लस पे आ जाइए। अनअकैडमी प्लस पे आपको ऑन टाइम क्लासेस के साथ साथ डेली असाइनमेंट मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा, आपको पूरा क्लासरूम वाला एनवायरनमेंट मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो YouTube पे या कहीं और पॉसिबल नहीं है, अनअकैडमी में पॉसिबल है। तो आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रिपरेशन एक सीरियस वे में स्टार्ट कीजिए। आप ये कोड यूज कर सकते हैं, 10% ऑफ तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। आपको मैं पूरी तरीके से गाइड करूंगा, आपको बताऊंगा आपको क्या, कहां से कैसे पढ़ना है। आप जब भी लो फील करेंगे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं, सारी चीजें मैं आपको पर्सनल लेवल पे प्रोवाइड करूंगा। जस्ट यूज दिस कोड एंड टेक द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसमें आपको एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो आपके थ्रू आउट द सब्सक्रिप्शन आपके ऊपर फोकस करता है, सिर्फ आपको फॉलो करता है। ओके, अब बेटा जाने से पहले लाइक बटन दबाना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। अगर आपको लगता है कि कुछ और ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको ये वीडियोस चाहिए, कॉन्सेप्ट्स इन मिनट्स, विद इन मिनट्स, आपको वो कॉन्सेप्ट समझना है, उसका सिग्निफिकेंस समझना है, तो जरूर आप कॉमेंट्स में लिखिएगा एंड आई विल मेक श्योर कि उसके ऊपर वीडियोस बने। So beta, I will see you in the next video. Till then, bye bye, take care. Thank you so much for joining.